This is a passage from reading number 22, right? 22, passage 2. And this is on storytelling from prehistoric to the modern times. If you remember the academic students, there are 2 essays related to storytelling, right? In the writing also. So whenever you read such topics, read them in depth so that you can apply certain things or certain, any line from here to your essay also at times. Okay. So here it is about storytelling from the prehistoric to the modern times. This passage is very interesting. Okay. And the first thing we do when we see any passage of reading, that we go to the questions and see what question types are there. The first set of questions which is there in this passage is, which paragraph contains the following information? And what is the tip that you have for such questions? First, we have to understand what's written in the question. उनको समझना है question. The tip that is for such questions is do them at the end. Last. Yes, do them at the end. Okay, because while doing the other questions, you will know which paragraph contains this information about for 1 or 2 questions at least. Okay, if not more, at least you will know for 1 or 2 questions. That will save your time. Okay. Then we go to the next set of questions. This is about these Egyptians, Ojibwe, Polynesians, and Greek. And ABC is given, and you have to classify as referring to either this information as either Egyptians or Ojibwe or Polynesians or Greek. And you have to write A, B, or C. Okay, next to it. Then questions, yes. Question 23 to 26, they are use one word only and they are blanks. Okay. So first we'll do these set of questions: Egyptians, Ojibwe, Polynesians, and Greek. So what is the first thing that you do when you get this question? You have 4 questions. You have 6 minutes. Okay. So what you do is in 1 minute you underline wherever you find Egyptians, Ojibwe, Polynesians, and Greek. Okay. Anything? No. Okay, you have to be very quick. Here. C para? D. Para में कोई है? No, ma'am. C में है. C में. Polynesian. Polynesian. Okay. Polynesians है. And Greek. Greeks. Greeks भी इसी में है. मैं writing. Greeks भी आ जाएगा. Greece है तो Greeks हो गया एक तरह से, ठीक है? And then next में para में Egypt. Ojibwe. And Egyptian. Egypt भी आ गया, Egyptians आ गया. Okay. And next para में है, आगे कुछ है फिर? आगे कुछ नहीं है. So we have underlined all of them wherever we could find. Now we'll go and see the questions. Read all the 4 questions in 1 minute. You took 1 minute to underline, right? Give out of the 6 minutes, you have given 1 minute to underline all these 4 options. Use 1 minute to read this and understand it thoroughly. Okay? Then you have 4 minutes to answer. Then you have another 4 minutes to answer. Okay. Now, this is adopted the writing system from another country. इस इनमें से जो भी कोई एक है, उन्होंने किसी और कंट्री से राइटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करा. ठीक है. Used organic materials to record stories. इन्होंने स्टोरीज रिकॉर्ड करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज करे और इन्होंने यूज टूल्स टू हेल्प टू टेल स्टोरीज. इन्होंने टूल्स का यूज करा. टूल्स होते कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज, ओके, टू हेल्प, ताकि इनको मदद मिल जाए स्टोरी टेलिंग में. ठीक है. टू हेल्प टू टेल स्टोरीज. अब ये हो गए आपके ए, बी और सी. अब हम इनके आसपास पढ़ेंगे जहां हमने इनको अंडरलाइन करा है.
फॉर्चुनेटली 2 पैराग्राफ्स में ही है सारे, ठीक है, सी एंड डी में. सो वी विल सी in some Polynesian communities a notched memory stick helped to guide to a storyteller through successive stages. तो इन्होंने एक notched होती है जिसमें कुछ notches बने हो, कुछ जैसे notch होता है, एक सिरा सा निकाल के अंदर से थोड़ा खोद दिया तो notches बन जाते हैं अंदर. notched memory stick को लिया तो कोई आपको एकदम से स्ट्राइक करा, आपको कोई आंसर मिल गया है? टूल्स वाला मिल गया आपको, वेरी गुड. ठीक है, अब अगला ग्रीस वाला देखो. One theory about the arrival of literacy in Greece, for example, argues that the epic tales about the Trojan War and the wanderings of Odysseus, traditionally attributed to Homer, were just so enchanting to hear that they had to be preserved. So the Greeks, 750 to 700 BC, borrowed an alphabet from their neighbors in the Eastern Mediterranean. कोई आंसर एकदम से सूझा? Adopted the writing system. Adopted the writing system from another country. ठीक है, अब आगे आ जाओ. ये इजिप्ट और ऑजिब्वे का इकट्ठा ही दिया हुआ है. The custom of recording stories on parchment and other materials can be traced in many manifestations around the world, from the priestly papyrus archives of ancient Egypt to the bark scrolls on which the North American Ojibwe Indians set down their creation myth. तो इजिप्ट और ऑजिब्वे ने कहाँ स्टोरीज रिकॉर्ड करी? उन्होंने स्टोरीज रिकॉर्ड करी ऑन पार्चमेंट. अब ठीक है, आपको पार्चमेंट और मटेरियल समझ नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है. इन्होंने ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैं पार्चमेंट का आपको मीनिंग ढूंढ के. पर रिकॉर्ड स्टोरी से ही आंसर कर देना था. रिकॉर्ड स्टोरी से आंसर मिलता है? Yes, ma'am. हाँ, तो पार्चमेंट का वैसे मैं आपको मीनिंग करा रही हूँ, कहीं और भी आ सकता है. पार्चमेंट पेपर आपने सुना है? Parchment, material made from the skin of a sheep or goat, used in the past for writing on parchment scrolls. Her skin felt like parchment, very dry. तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है जो सिंथेटिक नहीं है, मेड फ्रॉम रियल थिंग्स. तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो पार्चमेंट इज ऑर्गेनिक. पर रिकॉर्ड स्टोरी से ही आंसर आप आंसर दे सकते हो अगर आपको नहीं भी मीनिंग पता, क्योंकि इन दोनों ने ही स्टोरीज रिकॉर्ड करी ऑन पार्चमेंट पेपर. रिकॉर्ड स्टोरीज की एक ही ऑप्शन है, वो है बी. तो फिर इजिप्शियंस का भी बी आंसर है, ऑजिब्वे का भी बी आंसर है. तो ये चारों आंसर्स आपको क्लियर हो गए? Yes, ma'am. इजी थे कि डिफिकल्ट थे? Easy. अगर पार्चमेंट का मीनिंग नहीं भी आता, अगर आपको ऑर्गेनिक का नहीं भी मिल रहा कहीं से, यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस राइटली. Now we go to the next set of questions, which is the blanks. Aristotle wrote a book on the art of storytelling called Dash. Aristotle ने एक बुक लिखी on the art of storytelling और उस बुक को उसने नाम दिया ये जो भी है. चलो देखते हैं अरिस्टोटल का जिक्र कहाँ पे हुआ है. F paragraph. F में हाँ poetics. हाँ, Aristotle. He left some incomplete lecture notes on the art of telling stories in various literary and dramatic modes, a slim volume known as the Poetics. Volume book का हो गया ना, तो he wrote a book on the art of storytelling. उसका नाम उसने रख दिया Poetics. ठीक है. Next blank है. मैम द नहीं आएगा. One word है. वन वर्ड ओनली बेटे. आप ए एंड द तो आएगा. देखो अगर वन वर्ड ओनली की ऑप्शन आ जाए ना, आपके आर्टिकल्स की नॉलेज की कोई जरूरत ही नहीं है, गलती हो ही नहीं सकती. ठीक है. Aristotle believed the most powerful type of story to move listeners is. Aristotle believe करता है कि सबसे पावरफुल स्टोरी जो लिसनर्स को मूव कर देगी, मतलब मूव करने का मतलब है दिल को छू देगी. ओके, वो है यहाँ पे आंसर. Tragedy for Aristotle was particularly potent in its capacity to enlist and then purge the emotions of those watching the story unfold on the stage. So he tried to, so ये है tragedy. Answer is tragedy. ठीक है. देखो blank फिर से देखो.
मोस्ट पावरफुल टाइप, वहां पे पोटेंट वर्ड है, पोटेंट यहाँ पे पावरफुल का सिनोनिम की तरह यूज करा हुआ है, ठीक है। तो हम किसी भी दवाई की कहते हैं इसकी पोटेंसी क्या है, मतलब कितनी इसमें पावर है, समझ गए पोटेंट का मीनिंग, पोटेंसी, पोटेंट, ओके। तो वहां अंदर पोटेंट वर्ड है, यहाँ पावरफुल है, एंड यहाँ पे ट्रेजेडी आएगा। ये समझ आ गया कि नहीं? Yes, ma'am. ओके। अरिस्टोटल व्यूड होमर्स वर्क्स एज, अरिस्टोटल ने होमर के वर्क्स को व्यू करा एज, होमर यहाँ पे है, अरिस्टोटल होमर की यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे अरिस्टोटल की ही सारे व्यूज आ रहे हैं। फिर उसने आगे लिखा है द इलियड एंड ओडिसी वर ऑलरेडी कंसिडर्ड लिटरली लैंडमार्क्स stories by which all other stories should be measured. So what was the secret? So this is Homer के वर्क को उसने क्या बोला था अरिस्टोटल ने? अरिस्टोटल Homer's work as landmarks. लैंडमार्क होता है कोई एक पहचान चिन्ह की, इससे बेटर है कि इससे कम है, मतलब उसका एक तरह से लैंडमार्क था होमर का वर्क। अरिस्टोटल बिलीव्ड अट्रैक्टिव हीरोज शुड हैव सम डैश। अरिस्टोटल बिलीव करता था कि जो अट्रैक्टिव हीरोज हों उनमें कुछ हो, कुछ क्या हो? Last line H की flaw और weakness. फ्लॉ और वीकनेस, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, फ्लॉ या वीकनेस, दोनों लिख दोगे तो 0 आएगा। अब एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का मत सोचना कि दोनों लिख देते हैं, जो एग्जामिनर को अच्छा लगे वो मान ले, ऐसे नहीं मानेगा वो, ठीक है। तो आपको एक लिखना है, बोथ आर करेक्ट, फ्लॉ भी करेक्ट है, वीकनेस भी करेक्ट है, वन वर्ड ओनली है, तो एक वर्ड लिखना है। इज दैट क्लियर? Yes. Then the first set of questions जो हमने छोड़े थे, अब हम इनको देखेंगे और देखेंगे कोई एक आध आंसर मिला कि नहीं मिला। ये हो सकता है कोई भी नहीं मिले, पर ज्यादा चांसेस होते हैं आपको, जैसे ये 5 क्वेश्चंस है उनमें से आपको कोई आंसर मिल जाए, पर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, डोंट गेट डिसहार्टेंड। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम ढूंढ लेंगे अब इनके आंसर्स। A misunderstanding of how people today get stories, एक मिसअंडरस्टैंडिंग कि आज के लोगों को स्टोरीज कैसे मिलती हैं, ठीक है, एक गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, गलत फहमी। द कैटेगराइजेशन ऑफ स्टोरीज, स्टोरीज की कैटेगराइजेशन, स्टोरीज कैसी होती हैं, ये कैटेगरी है कि वो कैटेगरी है, दूसरा है कैटेगराइजेशन। तीसरा है द फंडामेंटल एम ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग का फंडामेंटल एम, मेन पर्पस, फंडामेंटल मेन एम पर्पस, ठीक है। 17th is a description of reciting stories without any assistance, कोई एक डिस्क्रिप्शन स्टोरीज को रिसाइट करने की बिना किसी हेल्प के, ठीक है। हाउ टू मेक स्टोरी कैरेक्टर्स अट्रैक्टिव, स्टोरी के कैरेक्टर्स को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। नाउ कोई आपको कोई अभी तक जो हमने आंसर्स करे हैं उनमें से कोई आपको लगा हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कहीं? मैम 18 का एच वहाँ पर करेक्टर का दिया हुआ है। हाँ, एच हमने थोड़ा सा पढ़ा था, और एच में थोड़ा सा ये था, यहाँ पे सम फ्लॉ और वीकनेस है, उससे अट्रैक्टिव होते हैं। ही मेड हिज हीरो सल्क, बिकर, चीट एंड ट्राई, स्टोरी के कैरेक्टर्स है। प्रोटैगनिस्ट होते हैं जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स होते हैं, उनको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स को प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। देखो, कैरेक्टर्स हाइफन प्रोटैगनिस्ट ऑफ ए स्टोरी, ठीक है, would want to know what happens next। तो फिर वो अपने Aristotle, as Aristotle saw the hero who shows a human side, some flaw or weakness to which mortals are prone is intrinsically dramatic, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये आपको समझ आ गया क्यों यहाँ पे ये वाला एच है, एक आंसर आपको थोड़ा मिल गया, ठीक है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड सी, और कोई अब हम देखेंगे फंडामेंटल एम, और ये पैसेज है हमारा स्टोरी टेलिंग पे, तो मेन पर्पस है, हमें मोस्ट प्रोबेबली ये पर्पस है, ये जो फंडामेंटल एम है ए पैरे में मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम चलो ए बी सी डी सारे देखते हैं, ये आपने सारे पढ़े हुए हैं ना, एक आंसर आपको मिल गया, 4 आंसर आपको मिलने हैं। अब ए में जाओ। It was told, be supposed to people crouched around a fire, a tale of adventure, most likely relating some close encounter with death, a remarkable hunt, an escape from mortal danger, a vision, or something else out of the ordinary.
Whatever its thread, the weaving of this story was done with a prime purpose. The listeners must be kept listening. Prime purpose. Okay. फंडामेंटल पर्पस. फंडामेंटल एम आ गया ना, तो ए है उसका आंसर. ठीक है, ए आंसर हो गया आपका 16th क्वेश्चन का. अब हम बी पढ़ते हैं. The first fireside stories in human history can never be known. They were kept in the heads of those who told them. This method of storage is not necessarily inefficient. ठीक है. From documented oral traditions in Australia, मनप्रीत मैं आपको बार बार म्यूट करती हूँ बेटे. From documented oral traditions in Australia, the Balkans and other parts of the world, we know that specialized storytellers and poets can recite from memory literally thousands of lines in verse or prose verbatim, word for word. ठीक है, अब बताओ. मेमोरी से, फ्रॉम मेमोरी, इसका मतलब विदाउट एनी हेल्प, अपनी याद से, कहीं लिखा नहीं है. हाँ, 17th B. 17th, a description of reciting stories without any assistance. ठीक है, this is B. ये हमें इसका आंसर मिल गया. B था ये पैराग्राफ B. ठीक है, अब C पैराग्राफ देखते हैं. C में पॉलिनीशियंस एंड ग्रीक, हमें आंसर्स मिले हैं इसके, और इसमें से हमने क्या आंसर लिया था? अडॉप्ट करते हैं अडॉप्ट करते हैं. Right. हाँ, नौश में, पर इसमें हमें और कुछ नहीं है जो हमने पढ़े हैं, उनमें से कुछ नहीं है. वी गो टू डी. The custom of recording stories on parchment paper and other materials can be traced in many manifestations around the world, from the priestly papyrus archives of ancient Egypt to the birthmark scrolls on which the North American Ojibwe Indians set down their creation myth. ठीक है. Okay. It is a well-tried and universal practice, so much so that to this day, story time is probably the most often associated with words on paper. The formal practice of narrating a story aloud would seem, so we assume, to have given way to newspapers, novels, and comic strips. This, however, is not the case. Statistically, it is doubtful that the majority of humans currently rely upon the written word to get access to stories. आप बताओ. हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना. हाउ पीपल टुडे गेट स्टोरीज. सोचा जाता है कि वो उनको स्टोरी सारी लिखित उसमें से मिल रही है, बट दिस इज नॉट द केस. इट इज फ्रॉम द ओरल रेसिटेशंस आल्सो. स्टोरीज जो हमें मिलती हैं आज भी, ठीक है, आज भी हमें स्टोरीज मिलती हैं. तो ये है बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल टुडे गेट स्टोरीज. तो हमें 14th का आंसर मिल गया, हमें 16th का मिल गया, हमें 17th का मिल गया, हमें 18th का मिल गया. हमें सिर्फ एक आंसर हमारा रह गया, दैट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ स्टोरीज. ठीक है, अब आपको क्विकली देखना पड़ेगा इसमें से. ई पैराग्राफ क्विकली गो थ्रू करना पड़ेगा. गो थ्रू करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें है कि नहीं. ओके, कैटेगरी कोई स्टोरी की आ रही है, आप क्विकली स्क्रॉल कर सकते हो क्योंकि एक ही आंसर रह गया है. इसमें देखो एफ में कोई स्टोरी की कैटेगरी कोई ऐसे मिल रही है. जैसे कैटेगरी होती है, जैसे मूवीज की कैटेगरी है, मूवी होती है रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर, इनको जॉनर भी कहते हैं कैटेगरी को. तो ऐसे स्टोरीज की यहाँ पे कोई है ऐसा नाम नहीं. देन जी में है. जी में है Typical type. ट्रेजेडी. ये कैटेगराइजेशन हो गई कि स्टोरी ट्रेजेडी है कि कॉमेडी है, हंसाने वाली है कि रुलाने वाली है. ट्रेजेडी रुलाने वाली, कॉमेडी हंसाने वाली. समझ आ गया? ठीक है, अब सारे आंसर्स आपको मिल गए. ये पैसेज हमने इकट्ठे मिलके करा है. हमें 20 से कम मिनट लगे हैं. ठीक है, आई थिंक इफ यू विल यू मस्ट नॉट लीव इट एज सच. अभी हमने कर लिया, चलो ये हो गया पैसेज, ऐसे कभी मत छोड़ना. You should always do these passages again. मैंने आपसे शेयर करे थे. अब हमने कल इसका ना 3rd पैसेज करना है 22nd रीडिंग का, और फिर थर्सडे और फ्राइडे को 23rd का 1st और 2nd करना है. ठीक है, पैसेज. And then we'll continue one passage a day next week also. For the new students, I'm telling all this. And the next class today, being a Tuesday, is on the graph. And today I'll be touching the
प्रोसेस चार्ट एंड प्रोसेस को टच करने के लिए पहले मैं आपको ग्रामर कराऊंगी, उसमें जो ग्रामर यूज होनी है, एंड देन वी विल डू 2-3 प्रोसेसेस. ठीक है. आई होप यू विल एंड आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट. ये जो मेन गलतियां होती है प्रोसेस में, बिलीव मी, अगर प्रोसेस आ जाए, आप जनरली ग्राफ राइटिंग में 6 पे हो तो आप एक बैंड का जंप ले लोगे अगर प्रोसेस अच्छी तरह आपने करा और प्रोसेस आ गया, क्योंकि सबसे इजी है अगर आपने ग्रामर के 1-2 रूल सीख लिए बस. easiest to handle and the most scoring. Okay, most scoring and the easiest. तो अच्छे से क्लास अटेंड करना. we will get back in 25 है, 10:25 है अभी, तो 10:35. is that okay with all the academic students and GT students? I'll see you tomorrow now. Okay, is that okay to all the academic students? Okay बोल दो, और Yes, कोई देना तो Yes, अच्छा बोल दो. Okay, चलो. Okay, we'll get back in 10 minutes. Bye. Bye.